books of 9th standard. Today we will continue with the second chapter, that is parallel line. In earlier standard we already done the parallel line means what. यहाँ पे जो L और M parallel है, यहाँ पे जो तीनों rod है वो parallel है, right? Now in this picture L and M is parallel, N is transversal, correct? तो पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल ढूंढना है. सबसे पहले हम लोग ये रिवाइज करेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर्स. जैसे यहाँ पे एक पेयर दिया है डी एंड एच, डी और एच करस्पॉन्डिंग है, तो दूसरा क्या रहेगा ए और ई रहेगा. फिर सी का करस्पॉन्डिंग क्या रहेगा, सी का जी, और बी का करस्पॉन्डिंग एफ, बी का करस्पॉन्डिंग एफ. ओके. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल वो भी अल्टरनेट, अंदर के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. जैसे सी का अल्टरनेट एंगल क्या रहेगा ई, बी का अल्टरनेट एंगल एच. ठीक है. हाँ, तो अल्टरनेट मतलब एक ये साइड तो एक ये साइड. और पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, बाहर का अल्टरनेट एंगल डी एफ ए जी. इंटीरियर मतलब अंदर साइड और एक्सटीरियर मतलब बाहर साइड. पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स का पेयर्स सी एच बी ई, अंदर का एंगल. ठीक है. तो दिस यू हैव टू बी अंडरस्टैंड. आफ्टर दैट वी विल सी सम रूल्स ऑफ द पैरेलल लाइन. सी in this first picture M is parallel to N, right? If two lines are parallel, then whatever interior angles are there means interior angles addition will be supplementary. इंटीरियर एंगल का जो एडिशन होता है कितना होता है, वो 180 होता है. जैसे a प्लस बी इज इक्वल टू 180, c प्लस डी इज इक्वल टू 180. मतलब इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री इफ टू लाइन्स आर पैरेलल एंड वन लाइन इज ट्रांसवर्सल. सेकेंड, if two lines are parallel, then corresponding angles are also equal. A is equal to B, C is equal to यहाँ पे कुछ दिया रहता था वो, तो A is equal to B is corresponding angle, it should be also equal. And then if two lines are parallel, the interior alternate angle is also equal, means D is equal to B. Is this clear? The three rules I already explained in these pictures. So if two lines are parallel, then interior angles addition will be supplementary, means 180 degree. यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया है a plus b is equal to 180, c plus d is equal to 180. If two lines are parallel, then corresponding angles are also equal. A is equal to b, and if two lines are parallel, the interior alternate angles are also equal. Is this clear? On the basis of these three rules, we will solve the exercise 2.1. Okay, how to solve this exercise 2.1? Just see and try to understand it. This is the first question of exercise 2.1. In figure 2.5, line RP is parallel to MS. RP जो है MS के parallel है, correct? DHP 85, DHP 85. Find the measure of following angle. RHD निकालना है, PHG निकालना है, HGS निकालना है और MGK निकालना है. तो सबसे पहले हम लोग RHD निकालेंगे. क्या निकालेंगे? RHD. ओके. अभी हम लोग इस डायग्राम में अगर देखेंगे, RHD और PHD लीनियर एंगल है कि नहीं? RHD एंड PHD लीनियर एंगल है, और लीनियर एंगल का टोटल कितना होता है? 180. तो इसको लिख सकते हैं हम लोग. एंगल RHD and angle PHD is pair of linear angle, correct? Therefore angle RHD plus angle PHD is equal to 180, जिसमें से PHD का वैल्यू अपने को पता है. RHD plus 85 is equal to 180. Angle RHD is equal to 180 minus 85. Angle RHD is equal to 95. Is this clear? अब दूसरा एंगल कौन सा पूछा है? दूसरा एंगल पूछा है PHG. PHG means this angle. Okay. Now RHD and PHG is opposite angle. That's why they should be equal. लिखने का angle RHD is equal to angle
PHG is equal to 95. Reason? Opposite angle. Is this clear? Next question is HGS. Okay. PHG एंड HGS इंटीरियर एंगल है, और इंटीरियर एंगल का माप कितना होता है 180. या तो ऐसा भी बोल सकते हैं DHP इज इक्वल टू HGS करस्पॉन्डिंग एंगल, मतलब ये ऊपर वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, तो ये भी इक्वल रहेगा, करस्पॉन्डिंग एंगल है. तो लिखने का हाउ टू राइट, जस्ट सी हियर, एंगल PHD is equal to angle HGS is equal to 85. रीजन क्या लिखने का? करस्पॉन्डिंग एंगल. इज दिस क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन MGK. ओके. अभी इसमें देखेंगे तो HGS एंड MGK इज ऑपोजिट एंगल, तो MGK इज ऑल्सो 85. लिखने का कैसा? एंगल MGK इज इक्वल टू एंगल HGS इज इक्वल टू 85. रीजन? ऑपोजिट एंगल. This question is solved. Take the screenshot. If any doubt is there, please ask. Next question is, now see the second question. In the figure 2.6, line P parallel to Q, P और Q parallel है, Yes. LM transversal है, measure of some angles are shown, hence find the measure. कुछ एंगल का माप दिया है, अपने को ABCD का वैल्यू निकालना है. अभी हम लोग जैसे अगर पहला A लिखेंगे तो 110 प्लस A इज इक्वल टू 180 होगा, लीनियर एंगल है, तो A का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे. A इज इक्वल टू B बिकॉज इट इज़ नथिंग बट द ऑपोजिट एंगल, तो B का वैल्यू भी आ जाएगा. हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, जस्ट सी है. इन दिस क्वेश्चन इफ यू आर सीइंग तो A का अगर वैल्यू निकालना है, इसमें जो लाइन है वो है P इज पैरेलल टू Q. P किसके पैरेलल है? Q के पैरेलल है. L और M ट्रांसवर्सल है, जिसमें से दो एंगल के माप दिए अपने को ABCD, 4 वैल्यू निकालना है. तो अगर हम लोग पहले सबसे पहले A निकालेंगे तो A प्लस 110 कितना होगा 180, लीनियर एंगल. लिखने का एंगल A प्लस 110 इज इक्वल टू 180. रीजन? लीनियर एंगल. Therefore, angle A is equal to 180 minus 110 is equal to 70 degree. Is this clear? तो A का वैल्यू आ गया. A is equal to B. एंगल A is equal to एंगल B. ऑपोजिट एंगल हो जाएगा. कौन सा एंगल हो जाएगा? ऑपोजिट एंगल. Therefore, एंगल B is equal to 70. B भी क्या हो गया? 70. क्योंकि देखो कैसा होगा, A किसके बराबर? इसके बराबर होगा, और ये दोनों क्या ऑपोजिट है, इसलिए A इनडायरेक्टली ऑपोजिट ऑफ B. नेक्स्ट अब हम लोग C के पास आते हैं. A प्लस C इज इक्वल टू वॉट? 180. A प्लस C इज इक्वल टू 180. तो लिखने का एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180. देयरफॉर एंगल A का ऑलरेडी हम लोग ने वैल्यू निकाला हुआ है 70. A का वैल्यू कितना है? 70. तो 70 प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180. एंगल C इज इक्वल टू 180 माइनस 70. एंगल C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 110. ठीक है, तो B भी आ गया, A भी आ गया, C भी आ गया. यहाँ पे वापस बताओ, A प्लस C 180 होता है. A का कितना वैल्यू था? 70, इसलिए C का वैल्यू कितना गया? 110. अब B प्लस D प्लस 115 180 रहेगा, लीनियर एंगल. लिखने का एंगल D प्लस 115 इज इक्वल टू 180, लीनियर एंगल. कौन सा एंगल? देयरफॉर एंगल D इज इक्वल टू 180 माइनस 115. एंगल D इज इक्वल टू 65 डिग्री. कितना? 65. ओके, अंडरस्टूड? नॉट गेटिंग? समझा?
Okay. So we will find the answer of A, then B and last, then C and last D. तो सभी आंसर्स मिल गए अपने को. तो second question is also solved. Take the screenshot if any doubt is there. Okay, next is, this will be the next question, third question in figure 2.7. L is parallel to M, N is parallel to P. Find ABC. ABC का वैल्यू निकालना है. A यहाँ पे दिया है, B इधर दिया और C दिया है. तो अगर हम लोग देखेंगे तो अगर ये 45 लेते हैं और इस एंगल का नाम x लेते हैं तो x प्लस ए इज इक्वल टू 180 हो जाएगा. लिखने का कैसे देखो ध्यान से. सपोज मैंने इस एंगल का नाम x दे दिया, करेक्ट. x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 45. तो और x प्लस ए कितना होगा 180. तो x प्लस ए इज इक्वल टू 180 तो a का भी वैल्यू आ जाएगा. a इज इक्वल टू b अपोजिट एंगल, तो b इज इक्वल टू c करस्पॉन्डिंग एंगल. इज दिस क्लियर. क्या सॉल्व करना है ध्यान से देखो. लिखने का एंगल x इज इक्वल टू 45 डिग्री opposite angle. Is this clear? Next, angle x plus angle a is equal to 180. इंटीरियर एंगल, कौन सा एंगल है? इंटीरियर, अंदर का एंगल है. x कितना है 45 है, प्लस एंगल a इज इक्वल टू 180. तो एंगल a इज इक्वल टू 180 माइनस 45 इज इक्वल टू 135. बराबर है. ए कितना हो गया 135 है. अभी ए किसके बराबर रहेगा? बी के ऑपोजिट एंगल. एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू 135 ऑपोजिट एंगल. एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी करस्पॉन्डिंग एंगल. एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी करस्पॉन्डिंग एंगल, थर्ड 135 डिग्री. इज दिस क्लियर? तो आपको इसमें ए का वैल्यू भी आ गया, बी का वैल्यू भी आ गया और सी का वैल्यू भी आ गया. इज दिस क्लियर? देन स्टूडेंट्स, यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एज अ होमवर्क. राइट. टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 ए, 1 का आंसर का सॉल्यूशन, सेकेंड का सॉल्यूशन, एंड दिस विल बी द आंसर फॉर थर्ड क्वेश्चन. Right? If any doubt is there, please ask. Along with that, these 3 questions you have to solve page number 13 this exercise. Pairs आपको लिखना है, right? Pairs भी लिखना है. तो this question you have to solve. Along with that, you have to solve first, second and third question. Okay? If any doubt is there, please ask. Thank you. Have a great day.